अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आए होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। ये देखिए मैंने जो है वो अपने सेशन पिछली वीडियो में मैंने सेशन के अनाउंसमेंट की वीडियो बनाई थी, तो उसमें आपको डिटेल में बताया था कि कौन सा सब्जेक्ट का सेशन है। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट का सेशन है ये वाला सब्जेक्ट, और इसमें ये वाली अनाउंसमेंट है। जो 403 का सेशन है ये वाली अनाउंसमेंट थी। इस लिंक से मैंने ये सेशन ज्वाइन किया है। 2 बजकर तकरीबन भी 5-6 मिनट पर मैंने ज्वाइन कर लिया था, और अब यहाँ पर सिर्फ एक ही बंदा आया है। ये देखिए कि मैम आई नहीं है। हम यहाँ पर सलाम कर लेते हैं। यहाँ पर मैम तो आई नहीं है यहाँ पर अब तक। पिछले 2 सेशन में कोई भी नहीं आया था। इस सेशन में तो चलो ये एक और बंदा आ गया। ठीक है, मेरे अलावा एक और पार्टिसिपेंट भी है। ठीक है, तो ये भी साथ साथ चलता रहेगा। 3 बजे तक इसका टाइम है, हो सकता है मैम आ जाए। तो ये देख सकते हैं जनाब आप लोग, वो पार्टिसिपेंट भी चला गया। ठीक है, और इसको हम करते थे क्रॉस। साथ में अपने टॉपिक्स भी कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके मैंने 12 नहीं किए, इसके मैंने मेरे ख्याल में 10 किया है। यहाँ पर देख लेते हैं, 11 हो गए इसके टॉपिक्स। ठीक है, ये देखें आप लोग 11 पर कंप्लीट हो गया। ये देखें 11 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। अब ये 12 टॉपिक है। ठीक है, तो रीअसेसमेंट ले लेते हैं इसकी। It is easy to break the bond between adenine and thymine than in between guanine and cytosine. हाँ जी जनाब, true. In my opinion, the true and correct. क्योंकि एडेनाइन और थाइमाइन में जो बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड होता है, और जो दूसरा वाला होता है साइटोसिन और गुआनिन में, उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। जितना ज़्यादा मजबूत बॉन्ड उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी उसे तोड़ने। ये हमारी आ जाती है वीडियो, इसको देख लेंगे अच्छे से। मैं भी देखती हूँ, आप लोग भी देखें। Dear students, in this module I am going to introduce to you 2 new types of molecules, and these are nucleosides and nucleotides. So a molecule containing all these 3 components, that is a pentose sugar, a nitrogenous base and a phosphoric acid, is termed as a nucleotide, while a molecule without a phosphate group is termed as a nucleoside. Or in other words, you can say a nucleotide molecule with its phosphate group removed is called a nucleoside. So in this picture you can see this is a pentose sugar, and this pentose is in its furanose configuration. So when a nitrogenous base is attached to this pentose, it becomes a nucleoside, and to this nucleoside, if a phosphate group is attached, it becomes a nucleotide. So this molecule is a nucleotide with all its 3 components. Now let us see how these 3 components are joined together. So as you can see here, this is a 1' carbon, and at this 1' carbon an OH group is present. So this nitrogen of the nitrogenous base, this attaches
with this 1 prime carbon of the pentose sugar. So this is nitrogen number 9, and this nitrogen contains a hydrogen atom. So the hydrogen of the nitrogenous base and the hydroxyl of the pentose sugar, these two combine, and with the elimination of a water molecule, these two groups, that is a pentose sugar and a nitrogenous base, these are attached. And what this attachment is called? This attachment is called N-beta glycosyl linkage. Why N-beta glycosyl linkage? Because this is a covalent interaction, covalent bond, and in this covalent bond the nitrogen of the nitrogenous base is included, and this pentose, this is in its beta configuration. So that's why the name to this covalent bond N-beta glycosyl is given. So all the purines, if this nitrogenous base is a purine, it will be attached from its nitrogen 9 to the 1 prime of pentose. And if this nitrogenous base is a pyrimidine, and as you know, pyrimidine is just like this molecule, and here it is nitrogen number 1. So if this nitrogenous base is a pyrimidine, it is attached from nitrogen 1 with the 1 prime of the pentose. Now come to the phosphoric acid. How this phosphate group is attached with this pentose sugar. So this, you can see this linkage. This linkage is called an ester linkage. Ester. How this ester is formed? Ester is formed when a phosphoric acid or any other organic acid is attached with hydroxyl or alcohol. So this is 5 prime of pentose, and at this 5 prime a hydroxyl group is present. To this hydroxyl group, the hydroxyl group of phosphoric acid, these are attached. When these two hydroxyl groups are attached, they eliminate a water molecule, and with the elimination of this water molecule, a bond is established, and this bond is called ester bond. So in this way, all 3 components are joined to make nucleotide. So simply you can say, in other words, a nucleotide is equal to nucleoside plus phosphoric acid, while a nucleoside is equal to a nucleotide minus phosphoric acid. सो फ्रेंड्स, हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है. अब हम चलेंगे अपनी रीडिंग की तरफ. हमारी रीडिंग जो है वो चलते हैं उसकी तरफ. इसके पहले पेपर इसे डाउनलोड कर लेते हैं. ठीक है, पेपर इतना डाउनलोड हो रही है. सही है. उसके बाद हम पढ़ लेते हैं. न्यूक्लियोटाइड, अ मॉलिक्यूल दैट कंटेन्स फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज सुगर एंड नाइट्रोजनस बेस इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोसाइड, अ मॉलिक्यूल दैट कंटेन्स पेंटोज सुगर एंड नाइट्रोजनस बेस बट लैक फॉस्फेट ग्रुप, दैट्स कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड. ठीक हो गया, समझ लग गई. काफ़ी अच्छी समझ लग गई, सर की अच्छी समझ लग जाती है. उसके बाद हम चलते हैं. न्यूक्लियोसाइड. न्यूक्लियोसाइड इज अ कम्बिनेशन ऑफ बेस एंड शुगर. न्यूक्लियोटाइड, इट इज अ कम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फोरिक एसिड. ठीक है. एग्जाम्पल्स आर, न्यूक्लियोसाइड के एग्जाम्पल्स हैं एडिनोसाइन, एडिनाइन प्लस राइबोस, गुआनोसाइन, गुआनिन प्लस राइबोस, साइटिडाइन, साइटोसाइन प्लस राइबोस, डिऑक्सी थाइमिडाइन,
थाइमिन प्लस राइबोस, ठीक है, थाइमिन प्लस डिऑक्सीराइबोस, सही। उसके बाद हमारे पास है एग्जांपल्स में न्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल्स में एडिनाइलिक एसिड, एडिनोसाइन प्लस फास्फोरिक एसिड, ठीक है, गुआनाइलिक एसिड, गुआनोसाइन प्लस फास्फोरिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, साइटिडाइन क्या आती है, साइटोसाइन प्लस राइबोस, ठीक है, साइटिडाइन प्लस फास्फोरिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड, यूरिडाइन प्लस फास्फोरिक एसिड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियोसाइड प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिज्म, मैक्रोमोलिक्यूल बायोसिंथेसिस, इन द मैक्रोमोलिक्यूल बायोसिंथेसिस ऑफ एंड सेल सिग्नलिंग, अच्छा, मैक्रोमोलिक्यूल्स में बायोसिंथेसिस में और सेल सिग्नलिंग में न्यूक्लियोसाइड ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसमिटिंग, इनकोडिंग एंड एक्सप्रेसिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। कंक्लूजन आ गया, मैनी न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स इनहिबिट द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज दैट कंट्रोल्स द रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरसेस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने बोनस पॉइंट की तरफ। बोनस पॉइंट का आप लोगों को पता है क्या है हमारा बोनस पॉइंट? हमारा बोनस पॉइंट है PPTs। अपने सेशन को भी देख लेते हैं। स्टे इन कॉल का पूछ रहा है क्योंकि यहाँ पर टाइम ज़्यादा हो जाता है तो वो पूछता है खुद ही कंप्यूटर के मीट, गूगल मीट खुद पूछता है कि आपको कॉल में रहना है कि नहीं, क्योंकि कोई भी नहीं आ रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ठीक है। हमारे सेशन में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। एक बार पार्टिसिपेंट आया था वो भी चला गया और मैम भी नहीं आई। ये थर्ड सेशन है, थर्ड सब्जेक्ट का, तो इसमें तीसरी बार ऐसे ही हुआ है, ठीक है। हर थोड़ी बहुत तो प्रोग्रेस है, एक पार्टिसिपेंट तो हो रहा था मेरे अलावा। चलो कोई बात नहीं, कभी तो आ ही जाएंगी मैम, थोड़ा बहुत डिस्कस हो जाएगा, कोई मसला वाला बात नहीं, ठीक है। अब चलते हैं हम अपनी PPTs की तरफ। हमारे PPTs में क्या लिखा हुआ है? न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। A molecule containing all these three components is called a nucleotide, while a molecule without the phosphate group is called a nucleoside, ठीक है। उसके बाद ये देखें, फॉस्फेट ग्रुप है और ये न्यूक्लियोसाइड है और न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये नाइट्रोजन स्पेस है, मैं अमाइनो ग्रुप लग रहा है, पेंटोस शुगर, हाँ ये पेंटोस शुगर है, पेंटोस शुगर, यस। ये फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोस शुगर, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड माइनस फास्फोरिक एसिड, और यहाँ पर फास्फोरिक एसिड ये है, फास्फोरिक एसिड, और ये पेंटोस शुगर है, ठीक है। और ये एक सेकंड, वो वाला स्ट्रक्चर कौन सा है मैं ही बता देती हूँ। फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन स्पेस, वो है नाइट्रोजन स्पेस है मैं ओपिनियन, ठीक है। ये नाइट्रोजन स्पेस लग रही है, सही है। ये नाइट्रोजन स्पेस नहीं लग रही है, हाँ ठीक है। नाइट्रोजन स्पेस ये है और ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये पेंटोस शुगर है, हाँ अब ठीक है सब। अच्छा जी, तो मुझे तो अच्छे से समझ आ गया है, आई होप आप लोगों को भी समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन टेक क्वेश्चन कर लेंगे। Considering the structure of DNA, the strands are held together by oxygen bond, hydrogen bond, carbon bond. None of these are covalent. ठीक है। Considering the structure of DNA, the two strands twisted around each other in a spiral formation are called double helix. दोनों हो गए करेक्ट, थैंक्स लॉर्ड। इसको कर लेते हैं क्रॉस, इसको कर लेते हैं डन। ये वाला टॉपिक पे बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गया, ठीक है। वैसे भी सबसे के काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़े, मैं कोशिश है कि मैं आज वो कंप्लीट कर लूँ, फिर असाइनमेंट्स भी मुझे बनानी है। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक आता है क्या है।
टॉपिक नंबर 13 ये लीजिए आ गया। आई डोंट नो कि कितना ज़्यादा टॉपिक ज़्यादा आते जाएंगे, कोई लिमिट भी है या नहीं। ये देखिए देखिए टॉपिक नंबर 14 ये ख़त्म होगा ना तो ये खुद ही खुल जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, इसी में ही कर देते हैं हम। चुप कर जाएं आप लोग। तो हम प्री असेसमेंट में आ जाते हैं, यहाँ पर हम आ जाते हैं और क्विज ले लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास which of the statement is true. A molecule that contains phosphate group, pentose sugar and nitrogenous bases is called nucleotide. A molecule that contains phosphate group, pentose sugar and nitrogenous bases. Yes, ये तो दुरुस्ती है। उसके बाद हमारा यहाँ पर इसको कर देते हैं क्रॉस। वीडियो अच्छे से सुन लेते हैं। Let us come to the types of deoxyribonucleotides. So as you have seen, in a nucleotide molecule there are three components, and these are phosphoric acid, pentose sugar and a nitrogenous base. So if you see, in these three components, two components are same in all the deoxyribonucleotides, and these are phosphoric acid and pentose sugar. The third component are nitrogenous base. It varies. So on the basis of type of nitrogenous base, there are four types of deoxyribonucleotides which are present in a DNA molecule. As you can see in this picture, so this molecule, a colored portion, this is a nucleoside because it contains a pentose sugar and a nitrogenous base, and this nitrogenous base is adenine. If this nitrogenous base is adenine, the adenosine will be called as deoxyadenosine, and if this phosphate group is also included in this molecule, it becomes a nucleotide, and this nucleotide, which contains adenine as its nitrogenous base, it is called deoxyadenylate. If you see this picture next, in this picture, this colored portion, again, this is a nucleoside, and in this nucleoside, this nitrogenous base is thymine. So this nucleoside is called deoxythymidine. So if this phosphoric acid is also included in this molecule, it will become nucleotide, and this nucleotide is called deoxythymidylate. So these are two types of deoxyribonucleotides. These are the other two types of deoxyribonucleotides because only four types of nitrogenous bases are present in the DNA molecule, and these are adenine, guanine, cytosine and thymine. So there are only four types of deoxyribonucleotides. So in this third type of deoxyribonucleotide, this colored portion contains a pentose sugar, and this nitrogen base is guanine. So this nucleoside is called deoxyguanosine, and if this nucleoside also contains a phosphate group, it becomes a nucleotide, and this nucleotide is deoxyguanylate. In the fourth type of deoxyribonucleotide, if the nitrogenous base is cytosine, the
compound, this nucleotide, whole nucleotide is called deoxycytidylate, and the only nucleoside, this nucleoside is called deoxycytidine. So these are 4 types of deoxyribonucleotides which are present in a DNA molecule. So these 4 deoxyribonucleotides, they make the structural units of a DNA molecule. तो फ्रेंड्स हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। हमारी इस टॉपिक की रीडिंग की तरफ चलते हैं हम, ठीक है। तो रीडिंग है हमारे पास यहाँ पर, और इसमें क्या क्या रीड करना है पर इसकी प्लीज़ डाउनलोड लगा देते हैं, ठीक है। So types of deoxyribonucleotides. There are 4 types of deoxyribonucleotides such as deoxycytidine ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, और deoxyadenine ट्राइफॉस्फेट, deoxyguanine ट्राइफॉस्फेट एंड deoxythymine ट्राइफॉस्फेट, ठीक होगा। और ये बहुत ही ज़्यादा सही लग रही है, ठीक है। चल लेते हैं इसके बोनस पॉइंट की तरफ, यानी कि 50 की तरफ चल लेते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है। There are 4 types of deoxyribonucleotides, ठीक है। ये हो गया हमारी नाइट्रोजनस बेस फॉस्फेट ग्रुप और ये पेंटोज शुगर, ठीक है। डिऑक्सीएडिनोसाइन, ठीक है। डिऑक्सीएडिनोसाइन ये है न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। तो डिऑक्सीएडिनोसाइन का मतलब है कि इसके साथ लगी हुई होगी एडिनाइन, और यहाँ पर डिऑक्सीराइबोन का मतलब है इसका लगी होगी थायमाइन, ठीक है। डिऑक्सीएडिनोसाइन को डिऑक्सीएडिनिलेट भी कहते हैं, और डिऑक्सीथाइमाइडाइन को डिऑक्सीथाइमाइडाइलेट भी कहते हैं। इसके बाद डिऑक्सीगुआनोसाइन और डिऑक्सीसाइटिडाइन, ये डिऑक्सीगुआनिलेट भी कहते हैं, इसे डिऑक्सीसाइटिलेट भी कहते हैं। इसका मतलब इसमें साइटोसाइन वाली बेस लगी है और इसमें एडिनाइन वाली बेस लगी है। These 4 deoxyribonucleotides make the structure of DNA, structural units of DNA, ठीक है। ओके जी, डन हो गया। समझ लग गई, बहुत ही इजी टॉपिक है, बस इसके जो डायग्राम है ना उसकी वजह से थोड़ा डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स हो जाता है,